Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is musharaka and mudarba. It is actually beta it is linked with your Islamic banking and finance, so that's why I am going to explain it to you, and it is very important in the examination point of view, so that's why you just listen it carefully and read it carefully, okay? So sorry. First of all, I would like to explain you the modes of operation in Islamic banking finance. Okay, so there are the various ways in which Islamic banking is going to be operate, and in this session we will discuss about it. So first one is mudarba. Okay, and we will I will just explain it to you in the next slides in the depth manner, but just for now you must know about it that what is mudarba is a venture capital or project financing. Okay, and what is musharaka is the partnership or profit and loss sharing. Okay, and the third one is leasing. In this leasing there is the type of financing leasing. Okay, and then base salam, which is also called deferred payment sales, and the another one is murabaha. Musharka, mudarba, and murabaha. Murabaha is a financing on cost plus basis. Okay, and the last one is ijara, which is we also called operating lease. Okay, now I would like to explain you in detail. So let me explain it first. The musharka. Musharaka is a joint partnership arrangement in Islamic finance in which profit and loss are shared. ठीक है, तो मुशारका बेटा क्या है? मुशारका एक जॉइंट पार्टनरशिप है. ठीक है, एक ऐसी अरेंजमेंट है इस्लामिक फाइनेंसिंग में जहां पर जो है दो पार्टनर्स या दो से ज्यादा पार्टनर्स जब मिलते हैं तो वो प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं. वट एवर दे रियलाइज, वेदर दे रियलाइज प्रॉफिट और दे realize loss, they have to bear or they have to realize it, and they have to contribute it or distribute it एज पर दी एग्रीड रेशोज. ठीक है, जो कि आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या मुशारका एग्रीमेंट के स्टार्टिंग में ही जो रेशोज होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं. उस रेशो के बिना पर जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होगा तो वो उनको उस एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंग जो है या कैपिटल जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, now the second one is profits from interest are not permitted in Islamic practice, necessitating the need for musharaka. ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमारे इस्लाम में जो है वो इंटरेस्ट बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. ठीक है, और उसकी परमिशन बिल्कुल नहीं है. सो दैट्स वाई इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस मुशारका. इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं. ठीक है, तो जिस बिजनेस में जिस भी आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो जिसमें आपने कैश इन्वेस्टमेंट की होती है और वहाँ पर आप जो हो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस भी रियलाइज कर रहे होते हो तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट कैटेगरी. ओके, सो दैट्स वाई it is permissible in Islam or in Islamic banking to operate by musharaka practice or agreement. ठीक है, a permanent musharaka is often used for long term financing. ठीक है, तो परमानेंट मुशारका जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता है. लाइक दो पार्टनर्स हैं वो जो है ऑन गोइंग कंसर्न पे बिलीव करते हैं अकाउंटिंग की प्रैक्टिस में और वो चाहते हैं कि वो उनका बिजनेस जो है वो उसका एग्रीमेंट जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ना हो बल्कि ऑन गोइंग कंसर्न हो. तो फिर यहाँ पर क्या होता है, एक परमानेंट मुशारका जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है विच इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स since it has no specific end date and continuous until the partner decide to dissolve it. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कोई एंडिंग डेट नहीं होती, ये ऑनगोइंग कंसर्न होता है जब तक के पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड ना कर लें कि अब हमें इस बिजनेस को लिक्विडेट कर देना चाहिए. गॉट इट? सो मुशारका बिजनेस इज लाइक दैट and there are various types of musharaka which I am going to make you known about it. So first one is shirakatul ainain. ठीक है, शिराकतुल आइनैन it is that type of musharaka or partnership in which the investors put in either capital or his efforts in a certain proportions or amount. ठीक है, against which he receives his pro rata returns. He is fully responsible for all liabilities of the business to the extent of his shares.
ठीक है। तो शराकतुल आइनैन में जो है वो ये होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो ना सिर्फ के अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं या एसेट्स को इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि वो अपनी एफर्ट्स, अपनी स्किल्स भी एक प्रोपोर्शन से जो है वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें, और फिर जो है दो से ज़्यादा जो पार्टनर्स होते हैं उस बिजनेस को जो है, उस मुशारका बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। इसमें ये होता है बेटा कि वो जितना भी लाइबिलिटीज उन्होंने टेक ओवर की होती है वो तमाम पार्टनर्स उस लाइबिलिटी के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दे हैव टू पे ऑफ इट। ठीक है। नेक्स्ट इज शराकतुल मुफव्वजा। ठीक है। शराकतुल मुफव्वजा में जो होता है बेटा, दिस इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड ओनली अमंग मुस्लिम्स। ठीक है। नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू जॉइन इन इट। All partners' investment and participation are in equal amount along with equal rights and responsibilities. ठीक है। तो जो शराकतुल मुफव्वज़ा है वो एक ऐसी मुशारका की टाइप है जिसमें पार्टनरशिप, ये भी पार्टनरशिप बिजनेस है बेटा, लेकिन यहाँ पर जस्ट ओनली मुस्लिम्स आर अलाउड। ठीक है। अदर जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो अलाउड बिल्कुल नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स अलाउड होते हैं बेटा। और यहाँ पर जो है आपके पार्टनर्स जो हैं जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में करते हैं। ठीक है। और उनको इक्वल राइट दिए जाते हैं और इक्वल लाइबिलिटीज उनके ऊपर जो है हेल्ड होती है। गॉट इट। तो शराकतुल मुफव्वज़ा जो है वो ऐसी पार्टनरशिप है मुशारका की, ऐसी काइंड है जिसमें नॉन मुस्लिम वर्क नहीं कर सकते और यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्वली होगी। ठीक है। इक्वल के बेस पे होगी। ठीक है। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फिर वो राइट्स हो या लाइबिलिटीज हो। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज शराकतुल मलिक। Milk refers to ownership. It is the joint ownership of heirs to the property as a result of inheritance. ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्टनरशिप जो होती है वो एक्चुअली जो है मिल्क जो है वो ओनरशिप को कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो जॉइंट ओनरशिप होती है ये हेयर्स की होती है। ठीक है। जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है जो इनहेरिटेड हुई होती है, तो वो तमाम लोग जो हेयरशिप में आ रहे होते हैं वो तमाम अपने बिजनेस को उस तरह से ऑपरेट करते हैं। इस तरह की पार्टनरशिप कोई बिजनेस है जो इनको इनहेरिट हुआ है उनके आबा अजदाद की तरफ से और उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें उनके जो भी इनहेरेंट है वो 2 या मोर देन 2 पीपल्स हैं, तो फिर दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेसेस विच दे हैव टू कीप ऑन और कैरी ऑन और कंटिन्यू, सो दैट टाइप ऑफ मुशारका बिजनेस इज कॉल्ड शराकतुल मिल्क। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज शराकतुल अबादन। ठीक है। शराकतुल अबादन में जो है व्हेन 2 और मोर पर्सन्स पुट इन देयर फिजिकल लेबर्स टुवर्ड अ कॉमन बिजनेस गोल, इट इज नोन एज शराकतुल अबादन। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और मे नॉट बी इक्वल डिपेंडिंग अपॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है। तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस बिजनेस में जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपनी फिजिकल एफर्ट्स जो होती हैं, लेबरशिप जो होती है, स्किल्स जो होती हैं वो अपने बिजनेस में लगाते हैं और फिर इस वजह से इस बिजनेस को, इस मुशारका के टाइप को जो है शराकतुल अबदन कहा जाता है। और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट जो भी इनको रियलाइज होता है वो क्या करते हैं, वो या तो इक्वली शेयर करते हैं या फिर उनका जो भी वट एवर स्टार्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट जो है जो भी अग्रीड हुई होती है रेशियो प्रोपोर्शन, उस हिसाब से वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज शराकतुल वजू। Here, partners may or may not bring in capital. A partner may be sleeping or active. One may also be admitted merely on the basis of one's goodwill without investing capital or physical labor. It is equivalent to general partnerships a practice in Pakistan. ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है शराकतुल वजू में कि यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनमें कोई एक पार्टनर जो है वो एडमिट हो सकता है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी हो। ठीक है। उसका इतना अच्छा नाम हो कि वो विदाउट एनी इन्वेस्टिंग ऑफ कैपिटल, चाहे वो कैश में हो या फिर वो फिक्स्ड एसेट की सूरत में हो या फिर उनकी फिजिकल कोई भी लेबरशिप या फिर स्किल्स जो है वो एफर्ट्स नहीं लगाते, बल्कि उनकी गुडविल इतनी अच्छी होती है कि उसकी वजह से उनको पार्टनरशिप में जो है इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है। और ये पाकिस्तान में बहुत जो है कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है। शराकतुल मजूरई। Shirakatul Marzurai is the type of musharaka take place in the field of agriculture. Under this arrangement, the land belonging to one party may be handed over to the other for utilizing it for agricultural purpose. The return from the land is equally shared by the landowner and the land user.
ठीक है। तो ये जो शराकतुल मज़ूरई है, ये एक्चुअली जो है बेस्ड करती है ये पार्टनरशिप एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर दो पार्टनर से एक के पास लैंड है और एक के पास स्किल्स हैं कि वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी कर सकता है, ठीक है। तो इन दो लोगों को इस्लामिक बैंकिंग जो है वो आपस में मिलाकर ये वाली पार्टनरशिप को जो है वो एग्जिस्ट करवाती है। इसमें ये होता है बेटा, जो भी रिटर्न मिलता है, जो प्रॉफिट होता है, वो इक्वली शेयर्ड होता है अमंग द लैंड ओनर्स और लैंड यूजर, ठीक है। नाउ देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ मुशारका। दे आर ईजी टू स्टैब्लिश। बेटा ये बहुत ईजी होता है इस्टेब्लिश करना, इसमें कोई जो है हाई अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा, और लोगों की जस्ट जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है ये बहुत ईजिली जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि जो हमारे पास एग्रीकल्चरल बेस्ड जो मुशारका टाइप है, उसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन के पास लैंड है और दूसरे पर्सन के पास स्किल्स है, तो दे कैन मेक अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड दे कैन कीप इट कंटिन्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि किसी के पास लैंड हो और जो है किसी के पास स्किल्स हो, बट यहाँ पर कोई ऐसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट ना करता हो, पार्टनरशिप मुशारका बिजनेस कि उन दोनों को मिलाकर कोई बिजनेस कंटिन्यू किया जाए, तो इसमें क्या होगा, इस सेंस में जो उस पर्सन के पास लैंड है वो यूजलेस होगी, ठीक है, क्योंकि वो ना खुद उसको यूज कर रहा होगा ना कोई अदर पर्सन उसको यूज करेगा, तो यहाँ पर इकोनॉमिक वेस्टेज है, ठीक है। तो इसलिए मुशारका बिजनेस का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है वो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। देन है फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इस मुशारका बिजनेस में, कि आप जो हो, अगर लेट सपोज कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो अनदर पर्सन है वो जो है अपना स्किल्स भी लेकर आ रहा है, और जो एक पार्टनर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आप जो है इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट इफ यू हैव द स्किल सो यू कैन इन्वॉल्व दिस स्किल अलॉन्ग विद द लेस कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो उससे दे कैन यूजली इजीली इस्टेब्लिश देयर मुशारका पार्टनरशिप बिजनेस, और अगर इनको जो है कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो भी इनके पास अपना है वो दे कैन इफ़ दे वांट सो दे कैन यूटिलाइज इट एंड दे कैन इस्टेब्लिश देयर बिजनेस बाय देयर सेल्फ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स हो जाती हैं बेटा, एज यू नो दैट इफ देयर आर टू और मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, सो दीज ऑल हैव मल्टीपल स्किल्स, ठीक है। तो ये जो स्किल्स होती हैं इनकी, किसी के पास मैनेजमेंट की स्किल्स होगी, किसी के पास फाइनेंसिंग की स्किल्स होगी, किसी के पास ऑपरेशनल स्किल्स होंगी, ठीक है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्किल्स different peoples have, and if they combine in a platform so they can give you a better result than a single person, ठीक है। सो इस तरह से भी एडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू राइज फंड्स, ठीक है। एबिलिटी टू राइज फंड इस तरह से होता है बेटा कि जब जो है दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने अपने कैपिटल और स्किल्स लेकर आते हैं, कंबाइन करते हैं और कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, एक्टिविटी ऑपरेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन या कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है आपकी इकोनॉमी में उस चीज़ की डिमांड भी जाहिर सी बात होती है, तो जब ही उस चीज़ का बिजनेस हो रहा होता है, इससे क्या होता है कि आपकी डे बाय डे जो है आपकी जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देने लगती है, और उससे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट अगर लेट सपोज 10,000 थी तो वो मल्टीपल होकर 1 लाख और उससे भी अब पहुंच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सकती है, क्योंकि अगर 2 to 3 माइंड्स जो है वो मिलते हैं बेटा, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको आउटकम वो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव होती है डिसीजन मेकिंग। अगर कहीं पर कोई लैकिंग आ रही होती है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरा जो होता है वो उसको रिकवर करता है और उसके बारे में कोई बेनिफिशियल जो है वो एडवाइस जो है कन्वे करता है, ठीक है। तो इस तरह से दे कैन बिल्ड एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है।
रिस्क ट्रांसफर हो जाता है बेटा, क्योंकि एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं होती यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस की बात है। तो इफ दे फेस और दे रियलाइज्ड एनी लॉस, so it will be contributed among all the partners, so in this way risk will be transferred among every partners, ठीक है। म्यूचुअल डिसीजन की एडवांटेज होती है कि भाई किसी एक पर जो है ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है तो फिर सबके साइन होते हैं, सबकी एग्रीमेंट होती है, देन वो डिसीजन जो है वो कन्वे किया जाता है फर्दर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक और एडवांटेज ये होता है कि म्यूचुअल डिसीजन पावर होती है, ठीक है। कोई सिंगल पर्सन जो है वो अपना डिसीजन आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, बल्कि जब तक तमाम पार्टनर्स जो है अग्रीड नहीं होंगे तब तक वो डिसीजन जो है आगे कन्वे नहीं होगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इन दिस वे मुशारका ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस व्हिच आर हियर, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जो डिफरेंट पार्टनर्स जो हैं वो इंगेज हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, हो सकता है उनकी अपनी अपनी कोई ऐसी लाइबिलिटीज हो जो उन्होंने लोन्स लिए हुए हों, ठीक है। वो अब होता ही है कि एक बिजनेस में आने के बाद जो है फिर अमंग द पार्टनर्स वाली बात हो जाती है कि अब जिसकी जो लाइबिलिटी है तमाम पार्टनर जो हैं उसको पे ऑफ करेंगे। तो इस टाइप की जो लाइबिलिटी होती है, या फिर हो सकता है ऐसा हो कि किसी एक पर्सन की किसी डिफॉल्ट की वजह से तमाम पार्टनर्स को कुछ ना कुछ फेस करना पड़े और लाइबिलिटी बेयर अप करनी पड़े, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं बेटा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉफिट इस तरह से कि भाई आपने जो है स्टार्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ मुशारका आपने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि आप लोग किस तरह से प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट करोगे, बट जब आप फर्स्ट टाइम प्रॉफिट जो है रियलाइज करते हो तो फिर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्शंस आ जाती हैं कि आपको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए और अदर पार्टनर्स को कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इन डिसीजन मेकिंग, अच्छा ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज इस तरह से बेटा कि आप अगर लेट सपोज 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स के अगर डिफरेंट जो है वो एडवाइजेस हैं फॉर अ पर्टिकुलर मैटर, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शंस आ जाते हैं कि एवरी पार्टनर्स वांट टू एक्सेप्ट दैट पर्सन्स एडवाइस, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन आते हैं, और अगर एक पर्सन की अगर एडवाइस को एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड कर दिया जाए और अगर उसका रिजल्ट जो है वो वर्स्ट निकले, तो फिर ये भी एक कॉन्फ्लिक्शन का जो है वो ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज डेथ पार्टनर, ठीक है। अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो आपको एज यू नो कि फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है या मुशारका जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। देन दे हैव नीड टू एस्टैब्लिश अगेन ऑल द एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग देयर पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। लिमिट द एक्सटेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंपनी की एक्सटेंशन को लिमिटाइज कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर जो है एक पार्टनर चाहता है कि हमारा बिजनेस और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो और ज़्यादा बढ़े, लेकिन अदर पार्टनर्स जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं हमारा इतना बिजनेस सही है, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये एक्सटेंड हुआ फर्दर तो हमें लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। एज यू नो दैट हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना एक्सटेंड करोगे अपने बिजनेस को उतना ज़्यादा रिस्क भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो रिस्क भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी लिमिटाइज आ जाती है कि पार्टनर्स आर वांट टू लिमिटाइज देयर बिजनेस, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ डिसीजंस, ठीक है। डिपेंडेंस होते हैं डिसीजन पे। अब सब ग्रुप जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बट दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर कि किसका जो डिसीजन है वो पावरफुल होगा और किसके डिसीजन पे रिलाई करना चाहिए, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। अगर उन्होंने कोई डेट लिया है, लोन लिया है, सो दे हैव टू पे ऑफ इट बाय सेलिंग देयर ओन प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। तो उन्हें अपनी अपनी ओन प्रॉपर्टीज भी बेचकर जो है अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ और सेटलमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंडल करना पड़ता है अमंग द पार्टनर्स। अब डिफरेंट पार्टनर्स हैं, उनको डिफरेंट जो है वो वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और हो सकता है माइट बी पॉसिबल देयर इज एनी स्लीपिंग पार्टनर्स। तो इस तरह से पार्टनर्स अगर हों कि स्लीपिंग पार्टनर्स हों या इनएक्टिव पार्टनर हो, तो उनको हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट इनएक्सपीरियंस्ड होगी तो बेटा पूरा बिजनेस जो है वो मैनेजमेंट पे बेस कर रहा होता है। इफ देयर इज द lacking in the management, so it will be a very big disadvantage of any organizations, ठीक है। Now, the another one is mudarba or sharing the profit and loss with venture capital.
is a partnership or trust financing contract similar to Western equivalent of general and limited partnership, where one partner, जिसे इन्होंने रबुल माल भी कहा है, साइलेंट पार्टनर्स होता है जो कि फाइनेंशियल होता है, गिव्स मनी टू अनदर मुदारिब और वर्किंग पार्टनर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कमर्शियल एंटरप्राइज। ठीक है, तो मुदारबा में क्या होता है बेटा, ये भी एक तरह से पार्टनरशिप बिजनेस होता है, लेकिन ये अमंग बिटवीन टू पर्सन होता है। इसमें ये होता है कि एक पर्सन जो है होता है वो अपनी कैपिटल फाइनेंसिंग के थ्रू जो है वो शेयरिंग करता है, और दूसरा पर्सन जो होता है वो अपनी स्किल्ड लेबर फोर्सेस के थ्रू जो है वो शेयरिंग करता है उस बिजनेस में। ठीक है, लेट सपोज कि एक पर्सन है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो हर कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास जो है देयर इज द लैकिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, और या फाइनेंशियल असिस्टेंस की उसको ज़रूरत है, देयर इज द नीड ऑफ इट। तो वो क्या करता है, वो तो बिल्कुल यूजलेस होगा। ठीक है, उसकी सारी स्किल्स यूजलेस हैं अगर उसके पास पैसा ही नहीं है उस बिजनेस को करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, इस्लामिक बैंकिंग ऐसे दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती है एक दूसरे से, कि एक के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा होता है और दूसरे के पास स्किल्स होती है, तो उन दोनों लोगों को जो है वो मिलाकर, और फिर इसके बाद जो है वो दोनों लोग जो है एक एग्रीमेंट के थ्रू, जिसका नाम मुदारबा एग्रीमेंट होता है, अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको शेयरिंग द प्रॉफिट और लॉस भी कहा जाता है बेटा। अच्छा, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप सपोज करें कि एक बिजनेस है जिसमें एक पर्सन ने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, लेट सपोज 5 लाख रुपीज। ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है वो क्या करता है, वो पूरे एक साल तक उस 5 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए, उस बिजनेस में वर्किंग करते हुए, एफर्ट्स करते हुए उस बिजनेस को जो है वो बहुत अच्छा इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो उस बिजनेस में जब फाइनल ईयर में जब प्रॉफिट होता है, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन बोथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन की जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगा होता है और दूसरे की एफर्ट्स लगी होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, लेकिन अगर लॉस होता है, तो लॉस अगर होगा तो ओनली द पर्सन हु इन्वेस्ट द अमाउंट विल बेयर द होल लॉस। ठीक है, जो जिसने जो है पूरी अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट की है, वही पूरा का पूरा लॉस बेयर करेगा। क्यों? क्योंकि पूरे साल जो उस जो लेबर पर्सन है, पार्टनर है, उसने जो काम किया था, तो उसने जो भी काम किया था उसमें अपनी एफर्ट्स दिखाई थी, अपने टाइम को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है उसने यूटिलाइज किया था। दैट्स व्हाई ही ऑलरेडी लूज्ड his all efforts, so that's why he will not contribute any amount in the shape of money. ठीक है, just only the person who is investing the capital, just only that person have to bear whole the loss in term of money. ठीक है, now the another one is leasing or financing leasing. ठीक है, a lease is classified as a finance lease if it is transferred the ownership of asset to the lease. ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइनेंसिंग लीजी को एक वो लीज होती है ये जो कि ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लीजी को। ठीक है, लीजर, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा लीजिंग में लीजर कौन होता है और लीजी कौन होता है। लीजर वो होता है बेटा कि जो अपना बिजनेस जो होता है वो इसलिए लीजिंग कंपनी को चला रहा होता है कि वो अपने डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स को या फिर कोई भी कैपिटल एसेट्स जो होते हैं उनको जो है वो डिफरेंट कंपनीज को लीज पर देता है। ठीक है, यानी रेंट पर एक तरह से। ठीक है, और उसके बाद इसमें देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लीजिंग, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि वो कंपनी जो होती है लीजिंग कंपनी, उसमें जो लीजर होता है वो लीजी को जो है अपना एसेट देता है यूज करने के लिए। ठीक है, अपने बिजनेस को रन अप करने के लिए। लेट सपोज कि मेरी लीजिंग कंपनी है। ठीक है, और आप मेरे पास आए हो कि आपका जो है एक बहुत बड़ा प्लांट है के इलेक्ट्रिक का, लेट सपोज। ठीक है, और आपको उसके लिए प्लांट की जरूरत है, पूरे के पूरे प्लांट की जरूरत है, वट एवर, और मेरे पास वो प्लांट है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको लीज पर दे रही हूँ, फाइनेंसिंग लीज पर। आप जो क्या करोगे, वो फाइनेंसिंग लीज पर वो अपने पास सेटअप कर लोगे। ठीक है, देन फिर क्या होगा बेटा कि मैं आपसे उसका जो है रेंट लूंगी। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंस लीज मे बी द कार लीज इन विच लीजी मेक्स पीरियोडिक पेमेंट टू द लीजर एंड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से आफ्टर 5 years द पोजेशन ऑफ द कार इज ट्रांसफर टू द लीज। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि एक फाइनेंस लीज हुआ जिसमें कार लीज की गई। लीजर कौन था? जो जिसकी कार थी, उसने लीजी को जो है अपनी कार दी और उससे कुछ पीरियोडिक पेमेंट्स ली। ठीक है, और उससे एक एग्रीमेंट कर लिया था कि 5 साल बाद जो है आप अपनी मुझे पेमेंट करते रहे और 5 साल बाद ये इसकी पोजेशन जो होगी वो मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से
कि लीजी ने जो है वो कार यूज भी की पूरे 5 साल, और 5 साल बाद टाइटल ऑफ दी कार जो है वो भी उसको मिल गया, और उसकी जितनी पेमेंट थी वो भी हो गई। ठीक है, इसमें लीजर को जो है वो ये फायदा होता है कि अगर लेट सपोज एक कार जो है वो 20 लाख रुपीज की है, तो वो उसको 30 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट में जो है बेचता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि उसको 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन टाइम टू टाइम हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अभी जो 10 लाख रुपए हैं वो इन 5 ईयर्स जो है उसकी वर्थ जो है वो क्या होगी, उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है कि लीजर को क्या फ़ायदा हो रहा है और लीजी को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो लीजी क्योंकि इतना कैपेबल नहीं है कि वो एट दैट टाइम जो है पूरे 20 लाख रुपीज देकर जो है एक कार खरीद सके, दैट्स वाई he break his installment in the 5 years and he will pay 30 lakh rupees instead of 20 lakh rupees. Got it? Base salam. Base salam is also called the deferred payment sales. It's a form of forward contract. When the price for an asset is paid upfront at the time of the contract for an asset or commodity to be delivered later. It can also be defined as the sale where the asset's commodity is delivered on the deferred basis in exchange for the price be paid immediately. ठीक है, तो बेटा ये जो बेस सलाम है ये एक डेफर्ड पेमेंट होती है। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपको अगर लगता है कि ये कोई एक ऐसा एसेट है जिसकी प्राइस जो है इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्सीड करने वाली है, तो और आपको जो है 2 महीने बाद लेट सपोज जो है उस एसेट की ज़रूरत है, बट यू वांट टू परचेज इट राइट नाउ, तो आप क्या करोगे, बेस सलाम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आप हायर करोगे। उसमें ये होता है बेटा, यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम और कमोडिटी एट ऑन दैट स्पॉट, उसी वक्त आपको पेमेंट करनी होती है, और आफ्टर सम टाइम जो भी एग्रीड टाइम पीरियड होता है उसके बाद आपको वो जो एसेट होता है या कमोडिटी होती है आपके हैंड ओवर की जाती है। ठीक है, या आपको डिलीवर की जाती है। इसमें होता ये है कि आप जो पेमेंट पहले कर देते हो और आपको जो एसेट होता है वो बाद में मिल रहा होता है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ मुराबाहा वेयर द प्राइस इज पेड ऑफ डेफर्ड बेसिस बट एसेट इज डिलीवर्ड इमीडिएटली। ठीक है, तो ये मुराबाहा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है कि प्राइस पहले पे की जा रही है और एसेट बाद में डिलीवर हो रहा है, और मुराबाहा में ये होता है कि आपकी प्राइस जो होती है वो बाद में पे ऑफ की जाती है और डिलीवर आपको पहले हो जाता है एसेट। गॉट इट? Now we are coming to the Murabaha as well. It is also a financing on cost plus basis. ठीक है, Murabaha also referred to as a cost plus financing is an Islamic financing structure in which the seller and the buyer agrees to the cost and markup of an asset. The markup takes place of the interest, which is illegal in Islamic law. As such, Murabaha is not an interest-bearing loan, qarde ribawi, but is an acceptable form of credit sales under Islamic law. As with a rent-to-own arrangement, the purchaser does not become the true owner until the loan is fully paid. ठीक है, अब मुराबाहा में क्या होता है बेटा? मुराबाहा में ये होता है कि आपको एसेट्स ऑलरेडी जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है, और हैंड ओवर कर दिया जाता है, और आपको पेमेंट जो होती है वो डेफर्ड वे में देनी पड़ती है, यानी टाइम टू टाइम आप उसको देते हो। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि आपके पास जो मुराबाहा जिसके एग्रीमेंट हुआ है और जिसको जो है वो एसेट दिया गया है, हैंड ओवर किया गया है, उसको टाइटल ऑफ ओनरशिप हैंड ओवर नहीं की जाती जब तक कि उसकी पूरी की पूरी जो पेमेंट है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि आप जो हो आपको जो है जो एसेट होता है वो यूटिलाइज करने के लिए मिल जाता है, यू हैव टू यूज इट फॉर योर बिजनेस एंड यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन्स time to time, and after the payment of full amount of loan you can get the title of that ownership. ठीक है, now then ijara is an Islamic form of lease in which the leaser gives the right to the leasee to use the asset of a specific period of time against the payment of lease rental. ठीक है, इजारा भी लीजिंग की एक काइंड है। इसमें लीजर जो है लीजी को अपना एसेट देता है फॉर द टाइम बिंग, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो 1 साल हो 2 साल हो, और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है पेमेंट लेता है। आपने देखा होगा बेटा कि कंस्ट्रक्शन वर्क आजकल बहुत चलते हैं, तो वहाँ उसमें जो मशीनरीज यूज हो रही होती हैं, ट्रैक्टर और बिल्डोजर और पत्नी वॉट एवर क्रेन्स एक्सेट्रा, तो बेटा वो जो होती है वो उस कंपनी की जो है
वो गवर्नमेंट जो है वो लीज पर लेती है वो तमाम एसेट, ठीक है, क्योंकि अगर वो उन तमाम एसेट्स को जो है वो परचेज करेगी तो सो दे विल बेयर अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ इट, ठीक है, और क्योंकि उनको डेली बेसिस पे उस चीज़ की नीड नहीं होती, कभी कभी उनको जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है, सो दे विल लीज ऑल दीज इक्विपमेंट, ठीक है, और एसेट्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस और अनदर वन थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इजारा भी आपको जो है इसमें लेजर जो होता है आपको अपना एसेट देता है यूज करने के लिए लीजी को अगेंस्ट द रेंटल पेमेंट्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म द लेजर में ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लीजी, ठीक है, अगर लीजर चाहे तो लीजी को ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकता है। All type of assets ranging from home appliance to heavy machinery to commercial building can be leased under the finance operating lease and इजारा, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के एसेट्स हैं जो हैवी एसेट्स होते हैं, हैवी मशीनरीज या कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह, वो लीज पे दी जाती हैं फॉर द फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग लीजिंग और इजारा, ठीक है। अदर मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, हियर इज द कर्ज हसना। कर्ज हसना is a form of interest-free loan, fungible marketable wealth that is extended by a lender to a borrower on the basis of benevolence. At the end of that period, the face value of the loan is to be paid off. ठीक है। अब कर्ज हसना में क्या होता है बेटा, एक ऐसा लोन होता है वो कि आपको जब वो दिया जाता है तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है, जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए जो भी एग्रीड है, उसके बाद आपको उसकी फेस वैल्यू जो है पे ऑफ करनी पड़ती है। The concept of कर्ज हसना is to assist the poor or needy by offering a loan without any interest, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ही है ये कर्ज हसना का कि आप नीडी लोगों को जिनको जरूरत है पैसों की उनको वो लोन प्रोवाइड करो विदाउट एनी इंटरेस्ट। द कुरान स्टेट्स दैट सच अ लोन इज ब्यूटीफुल एंड एडमायरेबल बिकॉज द बोरोवर ऑफ सच लोन इज अ गॉड, not the person receiving the money, ठीक है। According to the verses of Quran, God admires people who pay their wealth for servants of God by using the statement loan to God, while this wealth is provided for people by God, ठीक है। तो वो लोग जो कि कर्ज हसना के तौर पर जो है पुअर्स की मदद करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं कि वो उन गरीबों को नहीं दे रहे बल्कि वो लोन अल्लाह के लिए लोन अल्लाह को देना है वो लोन, ठीक है। तो ये हमारी हदीस में भी है कि ये जो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ के कर्ज हसना के साथ हम कोई जो है किसी की नीडी की जो है हेल्प करते हैं फॉर गिविंग देम द लोन्स, सो इट विल बी वेरी एडमायरेबल बाय गॉड, ठीक है। Next is hire purchase. Hire purchase is an arrangement for buying expensive consumer goods, where the buyer makes an initial down payment and pays the balance plus interest in installment. ठीक है, तो हायर परचेजेस क्या होती है, जहां पर आपको इनिशियल डाउन पेमेंट भी देनी पड़ती है और बाकी का बैलेंस भी देना पड़ता है एंड द रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट यू हैव टू पे, ठीक है। द टर्म हायर परचेज इज कॉमनली यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इट्स मोर कॉमनली नोन एज द इंस्टॉलमेंट प्लान्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। However, there can be a difference between the two. With some installment plans, the buyer gets the ownership right as soon as the contract is signed with the seller. ठीक है, कुछ इंस्टॉलमेंट ऐसी भी हैं जहां पर बायर को जो है टाइटल ऑफ ओनरशिप मिल जाता है जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ साइन होता है। विद हायर परचेज एग्रीमेंट द ओनरशिप ऑफ द मर्चेंडाइज is not officially transferred to the buyer until all the payment have been made, ठीक है। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस जो हायर परचेज एग्रीमेंट में जो ओनरशिप होती है मर्चेंडाइज की वो ऑफिशियली ट्रांसफर नहीं की जाती बायर को जब तक कि उसकी तमाम पेमेंट जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। Now here are different types of leasing which I also want to explain you. First one is financing leasing. Financial leasing is a contract involving payment over a longer period. It is a long-term lease and leasee will be paying much more than the cost of the property or equipment to the leaser in the form of lease change charges. It is irrevocable. In this type of leasing, the leasee has to bear all the cost and leaser does not render any services. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल लीजिंग में पहले भी बताया है कि लॉन्ग टर्म बेस होती है और यहाँ पर जो है होता ही है कि आफ्टर द एंडिंग टाइम पीरियड जो है लीजर जो होता है वो लीजी को वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी दे देता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, जो रेंटल पेमेंट लेता है वो इतनी हाई होती है जितनी उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, उससे ज़्यादा उसकी रेंटल पेमेंट होती है, तो वो उसके एक्सपेंसेस उसमें से निकाल लेता है।
फर्दर ये होता है बेटा कि जो भी लीज इक्विपमेंट है, अगर वो ड्यूरिंग द लीजिंग टाइम पीरियड अगर उसमें कोई खराबी होती है, उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, कोई भी डैमेजेस होते हैं, तो उसकी कॉस्ट मेंटेनेंस फीस जो होती है वो लीजी को बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। और लीजर जो होता है वो किसी तरह के चार्जेस और कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं होता, सही है ना, पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है। Now next one is operating lease. In an operating lease, the lessee uses the asset for a specified time period. The leaser bears the risk of obsolescence and incidental risk. There is an option to either party to terminate the lease after giving notice. अच्छा, इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग लीज में? ऑपरेटिंग लीज में लीजी के साथ लीजर जो है वो एसेट शेयर करता है अपना फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब इस पूरे लीजिंग के जो है ड्यूरेशन में अगर उस एसेट में कोई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है, कोई डैमेज होता है, तो लीजर हैव टू पे इट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लीजी। और अगर जो है यहाँ पर इस चीज की भी कंडीशन होती है कि अगर लीज चाहे तो भी टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। क्या होती है इसमें? लीजर बेयर ऑल एक्सपेंसेस, लीजर विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। अगर हो सकता है कि लीजर क्यों क्यों कर सकता है ये एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट इन वजह से कर सकते हैं क्योंकि लीजर को तमाम एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। अब अगर कोई लीजी जो है वो एसेट्स को जो है अनयूजुअल वे में जो है डैमेज करती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से लीजर को कॉस्ट हाईली पे करनी पड़ रही है, तो फिर इन दिस केस लीजर विल टर्मिनेट दी agreement of lease, ठीक है। Another way is leaser will not be able to realize the full cost of the asset, ठीक है। अगर लीजर को लगता है कि वो उस एसेट की फुल कॉस्ट रियलाइज नहीं कर पा रहा है, then he will terminate the agreement. Specialized service are provided by the lease, ठीक है। स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है अगर लीजर की तरफ से। दिस काइंड ऑफ लीज इज प्रेफर्ड वेयर द इक्विपमेंट इज लाइकली टू सफर ऑब्सोलेंस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्पेशल सर्विस उस वक्त प्रोवाइड की जाती है लीजर की तरफ से जब आप लीजर को लगता है कि ये इक्विपमेंट एक ऐसा है जो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। लेवरेज एंड नॉन लेवरेज लीजेस. In leverage and non-leverage leases, the value of the asset leased may be of a huge amount which may not be possible for the leaser to finance. So the leaser involves one more financier who will have charge over the leased asset. ठीक है? Now the third one is conveyance type lease. In conveyance type lease, the lease will be for a long period with a clear intention of the conveying ownership of the title on the lease. ठीक है? Now sale and leaseback. In a sale and leaseback, a company owning the asset sells it to the leaser. The leaser pays immediately for the assets, but leasee the assets to the seller. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है सेल्स एंड लीजबैक में कि सेलर जो होता है वो क्या करता है, ओनर ऑफ द कंपनी अपना एसेट सेल करता है लेजर को, ठीक है। फिर लेजर क्या करता है उसकी इमीडिएटली पूरी पेमेंट कर देता है एंड देन वही एसेट जो है वो लीज करता है उसी सेलर को, ठीक है, फॉर यूजिंग पर्पस, ठीक है। thus the seller of the asset becomes the leasee. इस सिलसिले में क्या होता है, जो सेलर होता है वो लीजी बन जाता है। द एसेट रिमेन विद द सेलर who is a leasee but the ownership is with the leaser, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कि एसेट जो है वो फिर से सेलर के पास आ जाता है क्योंकि वो लीजी है, लेकिन जो टाइटल ऑफ ओनरशिप होती है वो लीजर के पास ही रहती है क्योंकि उसने उस चीज को खरीदा होता है। दिस अरेंजमेंट इज डन सो दैट द सेलिंग कंपनी ऑब्टेन फाइनेंस फॉर रनिंग द बिजनेस along with assets. Hopefully it is clear to you. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah, we will meet in the next session with the new topic. Allah Hafiz. Thank you so much. Take care.